दीपावली शुभ अवसर के सुनहरे मौके पर अलीपुर सोसाइटी क्लब ने एकता का मिसाल पैगाम देते हुए ज़रूरतमंदों को साड़ी और बच्चों में मिठाइयाँ तकसीम की। इस प्रोग्राम में सारे समाजी कारकुन जनाब मोहम्मद इलियास साहब, डॉक्टर आसिम मैती, चाइल्ड स्पेशलिस्ट अब्दुल करीम उर्फ सोनटू, पंडित चुनचुन पाठक, जॉन्टी, आसिम शाह, विश्वनाथ दास भी पेशो पेश रहे। इस प्रोग्राम में सारे क्लब के मेंबरान ने हिंदू मुस्लिम सभी को भाईचारगी का पैगाम दिया। आइए देखते हैं आगे की खबर। देखिए, ये क्लब हम पहला बार नहीं आया है। इनका जो सोच है ये बहुत अच्छा है। क्यों ये छोटा क्लब हम बोलने से बहुत छोटा बात हो जाएगा। ये क्लब देखने छोटा है लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। देखिए, बहुत ही क्लब में आप जाएगा देखता है बहुत असर बसर कर रहे हैं। ये लोग फुटपाथ में ही पूजा करता है, फुटपाथ में ही सब कुछ करता है। क्यों ये लोग फुटपाथ लोग जो माने दीदी का जो है, हम लोग का ममता बनर्जी जो इंस्पिरेशन है, दीदी का जो है वो ग्राउंड लेवल में माने वो बोलता है जे हम তৃণমূল মানে মাটি থেকে যে উঠেছে উনি। আজকে দেখুন, আজকে পশ্চিমবাংলা আমি রাজনীতির কথা বলতে চাইছি না, কিন্তু ওনাকে না বললে বোধহয় আমাদের অনুষ্ঠানটা কিছু ইনকমপ্লিট থাকবে। কারণ হচ্ছে ওনার উৎসাহে কিন্তু আজকে আমাদের ইলিয়াস ভাই বা আমাদের যে পাঠকজি বা আমাদের যারা ব্যবস্থাপক এই যে ক্লাবটা, এরা কিন্তু হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈন পারসিক সবাই আছে। এখান থেকে সারাউন্ডিং যারা দেখছেন সবাই আছে। এরা কিন্তু সমস্ত অনুষ্ঠান এরা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈন পারসিক যা কিছু ভেদাভেদ না রেখে সবকটা অনুষ্ঠান করে। যেমন কদিন আগে দুর্গাপুজো করেছে, কালী পুজো করেছে, এরা ঈদও করে, এরা নবী সাহেবের জন্মদিনও পালন করে, সব কিছু করে। তার মানে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে আবার 25 মানে 25 ডিসেম্বর এরা যীশু খ্রিস্টের জন্য সেখানেও এরা পালন করে। 15 আগস্ট এরা তো ব্লাড ডোনেশন বা অন্যান্য অনেক কিছু সোশ্যাল ওয়ার্ক করে। সেই জন্য এই ক্লাবটার সঙ্গে আমার ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট খুব আছে। তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে এই যে একটা করোনা প্লাস ডেঙ্গু এই যে একটা বিশাল মানে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশান যাচ্ছে, সেই সিচুয়েশানকে উপেক্ষা করেও এরা কিন্তু ওদের ক্ষমতার অনুযায়ী ওদের পুজো চালিয়ে যাচ্ছে। পুজোটা কিন্তু আমাদের মানুষের মিলন অনুষ্ঠান, শুধু মিলন নয়, মানুষকে উৎসাহিত করে। এই কালী পুজোটা আমরা করি কেন? অশুভ শক্তির দমন বা শুভ শক্তির জয় হয়। মানে অশুভ শক্তি দেখছেন আপনি চতুর্দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অশুভ শক্তি যেটা মানে আমি বলতে চাইছি যে ইভিল পাওয়ার্স, মানে যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আমাদের, আমি এই কথা বলতে চাইছি যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। বিশেষ করে এখন আপনারা জানেন নিশ্চয়ই 1905 সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়েছিল। আবার আমাদের বাংলাকে ভাগ করার জন্য আমি কোনো পার্টিকুলার পার্টিকে কিছু বলছেন, কিছু স্বার্থান্বেষী কিছু বাজে লোক আমাদের এই পশ্চিমবাংলার যে ঐক্য, সাম্য, ঐক্য, মৈত্রী, একতা, এই যে আমাদের যে একটা সম্প্রীতি বার্তা, হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈন পারসিক আমরা সবাই মিলে এখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান। এইটা কিন্তু আমি বলতে চাইছি নজরুলের সাম্যবাদী কবিতার একটা লাইন, এখানে হিন্দু না মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোনজন, সেই একই কথা। আমি বলছি এই সম্প্রীতি আপনারা শুনছেন, উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ ভেদাভেদের জন্য কিছু স্বার্থান্বেষী পার্টি বা কিছু স্বার্থান্বেষী লোক দল সবাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি বলবো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের মতো যারা শিক্ষিত শুধু নয়, আমাদের সাথে যারা সব রকম সব জাতির লোক আছে, থাকতে থাকতে আমরা বঙ্গভঙ্গ তো দূরে কথা, আমাদের ভারত বা আমাদের যে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি, সেই সম্প্রীতি আমরা কোনোদিন মানে ভাঙতে দেবো না, সেই সম্প্রীতি বজায় থাকবে। এই জন্য আমি কিন্তু আমার মানে অভিনন্দন এবং আমার উষ্ণ অভিনন্দন শুধু নয়, আমার হার্দিক শুভকামনা সবার পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবাসী সব মানুষের জন্য হার্দিক শুভকামনা যে এই ইভিল পাওয়ার্সের এগেনস্টে আমাদের এখন কিন্তু অনেক অর্থনৈতিক মানে সংকটে আমরা আছি। গত 2 বছর ধরে লকডাউন এবং করোনা যুদ্ধে লড়াই করে এখন আমরা কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত, কিন্তু মানসিকভাবে আমরা বিধ্বস্ত নয়। বাঙালিরা আমাদের সম্প্রীতির জন্য কিন্তু আমরা কোনো সাহায্য ছাড়াই কিন্তু না খেয়ে আমাদের ভারতবর্ষের লোক মরবে না। আর সেটাতে আমাদের ইলিয়াস ভাই, আমাদের পাঠক ভাই, আমাদের এই যে যারা বলিষ্ঠ নেতা আছে, আব্দুল করিম ভাই, সব লোক কিন্তু আমরা সমস্ত জায়গায়, ইলিয়াস ভাই আপনি জানেন, আপনারা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে খিচুড়ি খাইয়েছেন, সমস্ত খাবার খাইয়েছেন, চাল, আলু, ডাল, আলু যা কিছু কোঅপারেশন আমি যেটুকু করেছি। কিন্তু আমাদের যে সহমর্মিতার সঙ্গে আমাদের শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উদ্যোগ এবং ওনার যে মানে প্রচেষ্টা শুধু নয়, ওনার উৎসাহে কিন্তু আজকে আমাদের বাংলা কিন্তু মজবুত একটা বাংলা হয়েছে,
একটা সুন্দর নতুন বাংলা হয়েছে এবং বাংলার উপকার হিসাবে বিধানচন্দ্র রায়ের পথে পরে আমি নিশ্চয় বলবো আমাদের শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং উনি থাকতে কিন্তু আজকে রিসেন্ট 4টে ইলেকশানে আপনারা দেখেছেন ওরা বিরোধী পার্টিকে নো হায়ার করে দিয়েছে। কারণ বাংলাতে আমি বলছি আগামী 42টা ইলেকশানে আমি বলছি 42 নীল হবে, 42 নীল হবে, কংগ্রেসের সিটটাও পাবে না। আমি যেটুকু রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আমি যাই না, কেন রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আমি যাই না, আমার প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে শিশুদের সেবা, সমাজসেবা, সোশ্যাল ওয়ার্ক, কোনো পলিটিক্যাল কালার আমার নেই। কিন্তু আমি আসি কিন্তু নারীর টানে, এই দাদাকে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি, পাঠক ভাইকেও তো আমার হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি। এদের যে এই গরিব মানুষের মধ্যে যে নিষ্ঠা, দেখুন আমি 15 আগস্টে এসেছি। ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों को और अपने बंगाल के जितने भी भाइयों हैं सबको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की, हैप्पी दिवाली सारे भाइयों को। और ये जो हम लोगों ने किया, हमने डॉक्टर माइती साहब जो हमारे दादा हैं, डॉक्टर बाबू भी हैं, तो इन्होंने हमें सिखाया है कि किस तरह मानवताकार मानव का काम करना है, किस तरह से हम लोग को चलना है और अपने मुल्क को जो मतलब के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो अनकॉमन अनसेंस है, उनको ये मैसेज देना, ये काम करके कि हम लोग की तरह आप भी आओ और ये वर्क, ये काम में साथ दो। हाँ, इंसानियत का एक पैगाम है, इंसानियत का एक मैसेज है। अभी जो वो आपने सुना होगा, देखा होगा यहाँ पे, तो ये यूट्यूब के जरिए मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि हैवानियत और इसके रास्ते से हट के आप इंसानियत के रास्ते पे चलो और अच्छे काम करो और मुल्क के लिए काम करो और सोशल एक्टिविटी में तुम ये करो। आगे का आपका क्या प्लान है? इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग और भी कोई प्रोग्राम करेंगे तो इंसानियत का इस पे करेंगे, जात का कोई बात नहीं, हम सब एक हैं यहाँ पर, हम लोग इंडियन हैं, यहाँ पे जात की कोई बात नहीं, जात की कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग सब एक प्लेटफार्म पे खड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ देंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। शिक्षा में हेल्प करेगा, हम एक्चुअली इनका साथ है। मैं भी एक ठो वेलफेयर ट्रस्ट का ये है, मैंने प्रेसिडेंट है, मेरा मिसेस वो रक्षा वेलफेयर ट्रस्ट चलाता है। तो वो बस्ती इलाका में जाके कोई गरीब लोग को कोई ऐसा सिलाई मशीन ऐसे कुछ, मैं एरिया का 2 लेडी को चूज करने बोला है, जो इनको हम पूजा का बाद हम थोड़ा सा बिजी रहता था, तो 2 सिलाई मशीन भी बांट देगा। और कोई गरीब पेशेंट को भर्ती का कुछ किताब का कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम इसको इन्फॉर्म करने बोला है। मैं यहाँ बहुत इलाका में जाके हम खुद ही करता है, तो मैं एक्चुअली मीडिया को बुलाता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जानते मैं सोशल वर्क, सोशल एक्टिविटी आस्ते आस्ते पब्लिक जान जाएगा। तो मैं आपको फुर्सत मिला बोल के बोला है ये इनका जो इलाका है, ये जब खास करके जहाँ मैं खड़ा हुआ है चेतला में, यहाँ बहुत सारा नीडी बच्चा है जो इंटेलिजेंट है। मैं फुटबॉल भी देखा है, ये लोग का इतना स्ट्रीट फुटबॉल खेल रहा था, 2-4 तो बच्चा को देखा ऐसे ही। मैं फुटबॉल एकेडमी में अरूप विश्वास का साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, मैं उनको बोला, मैं खुद ही अच्छा फुटबॉल क्रिकेट खेलता था, अभी भी खेलने भी आता है अच्छा से, मैं चैरिटी मैच खेल देता। तो मैं खेला में भी हम लोग का देखिए अभी जितना बेकार समस्या है, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है अभी थोड़ा बंद रख, वो बाद में बढ़ाने से हम वही कोशिश करेंगे कि सब टैलेंट सर्च करके गरीब पोर बात टैलेंटेड लोग को हम लोग मदद करेंगे सब एस्पेक्ट। कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक हैं, एक रहेंगे और एक थे। जब अंग्रेज़ था यहाँ, उस टाइम में तो कोई जातिवाद नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, फिर आज क्यों हो रहा है? जैसे मेरे दादा असीमदा बोले हैं अभी 1 सेकंड पहले ही कि जो रामकृष्ण परमहंसो जब जाके मस्जिद में ये दिखा सकते हैं जो मस्जिद में अल्लाह हो या मंदिर में भगवान हो, फ़र्क कुछ नहीं है। जैसे पंजाबी भाई के जो है गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह नहीं नाने पाटेकर जी गए थे मक्का मदीना में, तो जब वहाँ मक्का मदीना मस्जिद में वो गए तो पाँव जिधर दे रहे हैं तो मौलाना देख रहे हैं उधर ही कवा बन रहा है। तो जब वो ये दिखा सकते हैं कि जो हम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, भगवान, माँ, राम, रहमान या शिव या काली, अल्लाह और गॉड सब तो एक है। जब वो लोग हम लोगों को बड़े बड़े हस्ती लोग ये समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो फिर हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों का लहू एक है, एक ही सूरज के रोशनी में है, एक ही चांद के रोशनी में है, एक ही खेत का फसल का अनाज खा रहे हैं, एक ही कॉरपोरेशन का पानी पी रहे हैं, एक ही रास्ता में चल रहे हैं, एक ही बस में सफ़र करते हैं। तो फिर ये जातिवाद क्यों हुआ? अगर ये जातिवाद था तो जब मंगल पांडे भारत के आज़ादी के लिए सबसे पहले बार
बिगुल बजाए यानी हाथ उठाए लड़ाई करने के लिए, जो अंग्रेज़ को भगाना है, तो उनके सामने साथ में कौन थे? बिस्मिल खान। तो बिस्मिल खान ये क्यों नहीं कहे नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम तो मुसलमान हैं, हम भारत के लिए क्यों मरें? वो क्यों नहीं कहे? वो नहीं कहे इसलिए कि उनका कहना ये भारत मेरा है, ये मिट्टी मेरा है, हम लोग सब एक हैं। तब हम लोग क्यों फ़र्क करें? हम लोग आपस में यही चाहते हैं, जो जैसे मेरे बाबा दादा परदादा हज़ारों साल से लाखों साल से इस मिट्टी में मिल कर के रहे हैं, वैसे ही हम लोग सदैव रहना चाहते हैं। आज एक माँ बाप का अगर 4 बेटा होता है तो कोई भला होता है, कोई बुरा होता है, कोई शरीफ होता है, कोई बदमाश होता है। तो इसका मतलब हम यदि 4 भाई हैं तो हम लोग आपस में मिल कर रह नहीं सकते हैं, झगड़ा नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, इसलिए कि हम लोग एक हैं। माँ हमारी एक है, धरती माँ या भारत माँ। तो हम लोग आपस में लड़ के झगड़ के जी करके कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर प्रेम से हम लोग रहें तो आज हम उन हिंदू भाई को ये बताना चाहेंगे कि जो आज आप भारत में अगर मस्जिद को तोड़ रहे हैं, मस्जिद को क्षति कर रहे हैं, तो आप मंदिर को भी क्षति कर रहे हैं। आप बांग्लादेश में आप चले आइए, आप बांग्लादेश के मुसलमान भाई को हम ये कहना चाहते हैं, जो आप जब मस्जिद को जो पूजते हैं, उसमें जाके अजान पढ़ते हैं, रमज़ान हो या जो भी हो, जितना भी पर्व है उसमें आप जाके करते हैं, तो उस मस्जिद को भी उसी समझिए जो ये मस्जिद और मंदिर एक है। क्योंकि मस्जिद और मंदिर का आकार दोनों ही गोल है, कहीं चौड़ा और स्क्वायर नहीं है, दोनों ही गोल है। हाँ, फ़र्क ये है कि आप लोग निराकार यानी शिव हैं, जिसको ओम कहा जाता है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, कोई उनका आकार नहीं है। तो निराकार को आप मानते हैं, हम साकार को मानते हैं हिंदू। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं निराकार साकार। यदि कोई हिंदू भाई कहते हैं हम हिंदू हैं, तो आप शिव को मानते हैं, तो शिव तो निराकार है। तो मस्जिद में आप यदि कहते हैं जो उनमें भगवान नहीं है, तो वो तो निराकार है, वो तो निराकार। तो कैसे फ़र्क है? बिल्कुल। तो उस फर्क को देखिए, जो जब मंदिर और मस्जिद में निराकार का कोई शब्द नहीं है, कोई अर्थ नहीं, कोई रूप नहीं, तो फिर आपस में लड़ क्यों रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? आपस में प्रेम भाईचारगी बनाइए ना। आपके आपद विपद में वो खड़े हो रहे हैं, आज हमारे विपद में वो आ रहे हैं, उनके विपद में हम जा रहे हैं, तो फिर सब जब कुछ हो रहा है तो फिर जातिवाद लेके क्यों लड़ रहे हैं भाई? इस चीज़ को, इस नफ़रत को मिटा दीजिए, ताकि इससे हमारे जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे होंगे, उनमें ये प्रेम का भाव, एकता का भाव, समता का भाव आवे। ताकि आज हम जो भारत के वासी हैं, भारत जहाँ भी जाते हैं कहते हैं सोना का चिड़िया थे, आज हम लोग सोना का चिड़िया क्यों नहीं कहला रहे हैं? इसका क्या वजह है? इसका सबसे बड़ा वजह है नफ़रत। इस नफ़रत को मिटाने के लिए हम हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, सबको कहेंगे कि जब सूरज का रोशनी आपके लिए एक है, चांद का रोशनी एक है, कॉरपोरेशन का पानी एक है, रास्ता सरकार का एक है, बस सरकार का एक है, तो फिर आप इस चीज़ को ये मत मिलाइए कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। ये मत मिलाइए। आपस में एक माँ बाप के संतान के तरह मिल के प्रेम से अपने देश को बचाइए, अपने देश के लिए आज जाइए। हम आज बताना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो आज यदि चाइना अटैक करेगा तो हमारे यहाँ के इस अलीपुर क्षेत्र के जो बहुत ऐसे मेरे मुसलमान भाई हैं जो कहते हैं पहले हम जाएंगे तब बाद में मिलिट्री जाएगा, तो वो मोदी जी ये सुन लें, जो जब इस देश का मुसलमान यह कह सकते हैं कि जो हम पहले गोली खाएंगे बाद में मेरा फौजी जाएगा, तो ये मुसलमान गद्दार कैसे है? इस चीज़ का जवाब हमको दें। सो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास में इसका उत्तर नहीं है, वो बेउत्तर हैं, निरुत्तर हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो भाई आप जब उत्तर नहीं दे सकते हैं तो आप आपस में तोड़िए भी मत। आज एक चीज़ आइए, दीवा अली, इसको अगर हम लोग अलग दीवा और अली दिवाली कहते हैं, दीवा का मतलब हो गया दिया, अली का मतलब हो गया अल्लाह। तो क्यों दिवाली हुआ? रमजान, आज रमजान को कहते हैं राम एक हो गया जान एक हो गया, तो राम और जान जब दोनों हो गया रमजान हो गया, फिर आप क्यों कहते हैं हम हिंदू और मुस्लिम हैं? हाँ, इस चीज़ को सोचिए, पहले इस चीज़ पर आप गौर करिए, तब आप कहिए जो हम हिंदू और मुसलमान। आप ये बताइए, जो आप हिंदू हैं तो आपका बदन का खून लाल है, आप बोलिएगा हम मुसलमान हैं, आपके बदन का खून क्या हरा है? नहीं है, एक ही है। माँ का पेट तो एक ही है, माँ का शरीर एक ही है। जब माँ का सब जगह सब एक है, माँ का हम दूध पीते हैं, वही माँ हमको जब जन्म दे रही, वहाँ जब फर्क नहीं है तो आप और हम क्या हैं? आप मेरा हस्ती और आपका हस्ती नहीं है जातिवाद लगाने का। इसको मिटाइए, आपस में वैमनस्यता का हटा करके प्रेम का भाईचारगी लाइए, प्रेम का संदेश दीजिए और देश को जो है सो आगे बढ़ाइए। जो हमारे ऊपर में कोई जा रहा है तो हिंदू मुस्लिम कोई मत रखिए, हम इंसान हैं, इंसानियत से बड़ा कोई जात नहीं है। मिस्टर प्रताप दा
यानी हमारे दादा जिनके साथ हम लोग ने पॉडिशन शिकार पॉडिश किया है पूरे चितले के अंदर 4 नंबर वार्ड में, तो अगले साल वो हमारे साथ थे, दिवाली मनाए और बहुत बड़े पैमाने पे दिवाली करते थे। वो काफ़ी बजट था उनका गोवन नगर रोड में। तो आज उनको बहुत मैं मिस कर रहा हूँ। आज ये पूजा के दिन वो थे, इसके बाद 1 महीने बाद 15 दिन के अंदर उनका डेथ हो गया। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ उनके लिए, मैं 1 सेकेंड के लिए मैं मौन ये करता हूँ दादा के लिए। ये सब जो मिल के एक साथ कर रहा है कि सेकुलर देश में ऐसे ही होना चाहिए। क्या सब ये ऐसे मिल के रहना सबसे अच्छा है, क्योंकि कोई जगह में है हिंदू मुस्लिम बराबर रहना ही सेकुलर देश का एक ही है। ईश्वर को मानता है तो हम बोलेगा सब आम आदमी को अल्लाह को जैसा रिस्पेक्ट देना होगा, ऐसा भी हमारा जो ईश्वर है उसको गॉड है उसको भी एक साथ कांधा में कांध लगा के एक साथ हम हिंदू मुस्लिम कोई फ़र्क नहीं है। ये बंगाल घाटी है, ये कोई दूसरा घाटी नहीं है। तो ये जो মেসেজ আম দেগা মেসেজ যেটা দেবো আমি সেটা হচ্ছে আমাদের এই বাংলার মাটিতে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হিন্দু মুসলমান ভাইরা আমরা বিগত দিনেও লড়াই করেছি ব্রিটিশদের সঙ্গে, এখনও আমরা লড়াই করব সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে যারা এই উস্কানি দিয়ে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করতে চাইছে, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে, তাদের আমরা বলবো যে এইসব অশান্তির রাস্তা ছেড়ে বাতাবরণ শান্তির বাতাবরণ যাতে তৈরি হয়, সেই বাতাবরণে আমাদের মূল শক্তি। আমরা আজকে কালী পুজো করছি। ইলিয়াস ভাই, আজকে সবথেকে আমার আনন্দ লাগছে যে এখানকে সন্টু ভাই, ইলিয়াস ভাই, আরও যারা আছে, যত মুসলিম ভাই আছে, আমি গর্বিত বোধ করি ভারতীয় হিসেবে এবং বাঙালি হিসেবে যে আমার মুসলিম ভাইরা আমাদের সঙ্গে এসে শক্তির আরাধনা করছে। রামকৃষ্ণদেব মসজিদে গিয়েছিলেন, তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে মুসলিম হিন্দু কী করে একসঙ্গে চলতে হয়। সেটাই আমি আজকের এই শুভ দীপাবলি আলোকের উৎসব, মনে মানুষের আলোক জ্বলুক, যে অশিক্ষা মনের মধ্যে রয়েছে তা মুছে ফেলে আমরা এগিয়ে যাব, যাতে আমরা আগামী দিন সুন্দর বাংলা, সুন্দর ভারতবর্ষ গড়তে পারি। थैंक यू सर।